I think everyone has joined. So let me start again. Am I audible? I'm sorry, I need to ask this so that I can be assured what I'm speaking is reaching to the people. Okay. So let me start from where I stopped. In metal side, we have seen that uh, yes, in metal side, we have seen that there are only two levels. One is intrinsic level, and one is this electron Fermi level, where it is conducting actually. But if you see in semiconductor, there is a valence band, there is a conduction band, and then there is a intrinsic level. That is the difference between metal and semiconductor. And oxide, there is no band. Now you see that this conduction band of semiconductor tries to match up with the conduction band of this metal. Similarly, its EFP try to match up with this level of metals. That is why, because semiconductor try to match up with the metal, that is why there are the bends in this energy band diagram. And because there is the surface potential. Now, what was surface potential? See, let me explain the term surface potential. Surface potential है क्या? सरफेस पोटेंशियल जो है, यहाँ पर जो सरफेस पोटेंशियल है, सरफेस पर जो पोटेंशियल है, ये किस पर डिपेंड करता है? अगर यहाँ पर आप लेस देन जीरो दोगे तो होल्स आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पर लो पॉजिटिव दोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर हाई पॉजिटिव दोगे तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन्स. तो surface potential will depend on that what gate voltage that you are providing. Point number one. Second point is it will depend on the work function difference. Kiska work function? You have a metal, you have a silicon, and you have an oxide. ये तीनों एक ही लेयर में लगे हुए हैं ऐसे, और इसके ऊपर ये मेटल है, ये आपके पास ऑक्साइड है, यहाँ पर आपके पास सेमीकंडक्टर है. तो इनका जो वर्क फंक्शन डिफरेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. और तीसरा, ये जो बैंड है, these are why these are upwards, because you are in the condition of accumulation, right? When a p-type semiconductor is in accumulation or flat band condition, then the bends move upwards. ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है बहुत ज्यादा. प्लीज नोट दिस क्वेश्चन. ये इंटरव्यू में होता है कि आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम में व्हेन यू इन द एक्यूमुलेशन रीजन, why this flat energy band diagram is moving upwards, because there is an accumulation of holes. That is why it is in upward condition. Now you please match this diagram with this. Now there is a condition of depletion, and in depletion this QVG is coming downwards towards lower. Why?
because you have now applied the positive voltage over here. Initially, there was a negative voltage. This arrow was upwards. Now you see there is a positive voltage. This arrow is towards downwards. Because this arrow is towards downwards, तो इस लेवल को मैचअप करने के लिए सेमीकंडक्टर कोशिश करता है. तो उसके लिए इसके तो सारे ये जो फ्लैट बैंड्स हैं ये सारे के सारे डाउनवर्ड्स हो जाते हैं. इसको दोबारा से देखिए. जब आपने नेगेटिव वोल्टेज दिया था, दिस लेवल वाज ऑन द हायर साइड, तो ये जो फ्लैट बैंड वोल्टेज था ये आपका ये बैंड ऊपर की तरफ चला गया. when you have given the positive voltage is starting with downwards होने से आपके ये बैंड जो है सारे के सारे नीचे की तरफ मूव कर गए. and then when you increase this energy further, ये क्यों आपने फर्दर इंक्रीज की? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे. आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया. अब आप इसको इससे जरा एक बार मैच कीजिए. Match it with this. See the difference between these two lines means there is a low positive energy, and there you see high positive energy, and you see there is bending of bands is low, and when you apply high energy, this bending of bands is becomes higher. The more you give energy on the positive voltage on the gate, the more bending of flat bands towards downwards will be there, right? Energy band diagram, because it is ultimately what will happen. Ultimately, the current will flow. This physics is very important, that why this energy is flowing. You are moving more towards positive voltage. Now you see, now this is talking about the depth of depletion region. डेप्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन की हम लोग बात करेंगे, लेकिन डिप्लीशन रीजन कौन सा डिप्लीशन रीजन जिसकी डेप्थ की बात हो रही है? यू सी इन दिस केस देयर यू हैव डिप्लीशन रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. ये डिप्लीशन रीजन कितना गहरा हो सकता है? हाउ मच डेप्थ ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन इज एक्सपेक्टेड, दैट इज कैलकुलेटेड ओवर हियर. If you want that, I can explain the whole derivation. Otherwise, if you can please read this derivation from the book, you can easily get the answers. I'll explain you its final structure. Its final derivation says that it depends on the permittivity of silicon. This phi f, which is the Fermi level, and this is the charge, and this is number of acceptor ions. Number of acceptor ions is number of holes. This will explain how much depth your depletion region will have. I will not give more emphasis on this, because at the end of the day you will be requiring the final formula in which you can just find out कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है किस किस पर डिपेंड करती है. ये जो अगर आप इसको वैसे भी देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर. अगर आप इस डिप्लीशन रीजन को देखो यहाँ पर ध्यान से, तो डिप्लीशन लेवल किस पर डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपके पास जो सिलिकॉन है उसकी परमिटिविटी क्या है. दूसरा डिपेंड करेगा क्योंकि आपने यहाँ से होल्स को नीचे करना है, तो नंबर ऑफ होल्स कितने हैं. और तीसरा डिपेंड करेगा कि आपके पास यहाँ पर ये जो मेटल है और सेमीकंडक्टर है, इनके वर्क फंक्शन में डिफरेंस कितना है. तीन चीजों पर डिपेंड करेगा. अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इट शोज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन phi s and phi f, सरफेस और फर्मी पोटेंशियल के बीच का गैप, परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन, चार्ज ऑफ योर होल्स, एंड देन नंबर ऑफ होल्स. इसके ऊपर आपके डिप्लीशन रीजन की थिकनेस डिपेंड करेगी. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि नंबर ऑफ होल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्यों? अगर आपके पास ज्यादा सामान होगा तो उसे धक्का लगाने के लिए ज्यादा जोर लगेगा. इफ यू हैव मोर थिंग्स यू नीड मोर एनर्जी टू पुश देम. मींस इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस you need more energy to push these ions. So this depletion width will be low if there are more number of acceptor ions, more number of holes are there. This will be high if there are less number of ions. Then if there are a less number of ions, they can be pushed easily. If there are more number of ions, they cannot be pushed easily. That is why it is called inversely proportional.
this part, this inversely proportional, right? So what we have studied today, we have studied that what is the energy band gap structure, what is the band gap structure of electron, this in inversion, in accumulation, and in depletion. What is the depth of depletion region? How this all these factors impact the MOSFET. Now you see this is a four terminal structure of MOSFET. Yesterday I started talking about it, and because we are now moving towards the laboratory, so I will explain you the important part, which we will validate in our laboratory. So there are four terminals we have seen in the lab. One is source, one is gate, and one is drain. अब इसे हम ध्यान से समझ लेते हैं एक बार. आप गेट पर एक वोल्टेज देंगे, वो वोल्टेज यहाँ पर, ये आपके पास बीच में एक मेटल है, सॉरी बीच में एक आपके पास एक इंसुलेटर है SiO2, ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और ये इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन की लेयर क्रिएट कर देगा. इलेक्ट्रॉन की लेयर कैसे क्रिएट होगी कि आप यहाँ से वोल्टेज देंगे, अगर यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज होगा तो यहाँ पर होल्स आ जाएंगे क्योंकि नीचे पी टाइप है. अगर आप लो वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर सिर्फ डिप्लीशन रीजन दिखाई देगा. अगर आप यहाँ से हाई वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक लेयर आ जाएगी. तो आपके इस वाले N और इस वाले N के बीच में एक चैनल फॉर्म हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ये बिल्कुल एक मॉसफेट का स्ट्रक्चर है. अगर आप इस मॉसफेट को अगर ध्यान से देखें, इसमें अगर आपको काम करना हो और आप इसको इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें जो आप लोग लैब में देखते हैं, तो यू विल सी कि यहाँ पर इसका ये बल्क है, जिसको आप ये बॉडी बल्क या सबस्ट्रेट बोलते हो, इसको आप यहाँ सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो. नाउ वी कनेक्ट दिस सोर्स विद बॉडी. क्वेश्चन है हम सोर्स और बॉडी को क्यों कनेक्ट करते हैं, ये इंटरव्यूज में नॉर्मली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपने सोर्स और बॉडी को क्यों कनेक्ट किया. मैंने कल आपको बताया था, लेट मी क्लियर द इंक. यस, मैंने कल आपको बताया था कि आपके पास ये जो आ गया, हाँ, आपके पास ये जो N है और ये P है, ये अपने आप में एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करने लगता है. अगर ध्यान से देखो तो ये N है, ये P है, ये तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया. अगर आप यहां पर हायर वोल्टेज दे दो और यहां पर लोअर वोल्टेज दे दो, तो इसका मतलब हमने P को लोअर वोल्टेज दे दी, N को आपने हायर वोल्टेज दे दी, तो ये आपका पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया. और अगर आप यहाँ पर लोअर वोल्टेज दे दो, यहाँ पर हायर वोल्टेज दे दो, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया. दोनों ही केसेस में इंटरनल पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा और वो अंदर से करंट को लीक करना शुरू करेगा. तो ये पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म ना हो, इसके लिए हम सोर्स और बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं. जब आपने सोर्स और बॉडी को कनेक्ट कर दिया तो सोर्स और बॉडी सेम पोटेंशियल पर आ गए. तो फिर पी और एन को अगर आप सेम वोल्टेज दे दो तो पीएन जंक्शन डायोड विल नेवर कंडक्ट, नीदर इट इज इन फॉरवर्ड बायस नॉर इट इज इन रिवर्स बायस. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. बात समझ आई कि हम सोर्स और बॉडी को क्यों कनेक्ट करते हैं मॉसफेट में. Why do we connect source and body? So that there should be no PN junction diode. राइट? अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज मैं आपको जो हमें लैब में करना है उसके बेसिक्स की तरफ लेके जाता हूँ. मॉसफेट की बेसिक्स हम अभी और पढ़ते रहेंगे अगली क्लासेस में. इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर वो ओवर हो जाएगा, समझना भी मुश्किल हो जाएगा. इससे आगे मॉसफेट के कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा, अब कल की क्लास में बताऊंगा. अभी मुझे बताइए कि अगर इतना समझ आ गया, कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज मैं आपको लैब के बेसिक्स पढ़ाने शुरू करता हूँ ताकि हम लैब का एक्सपेरिमेंट कर सकें. Please ask if you have any question till now. Any random question, even if you feel like it's a very stupid question, please ask. एक बात याद रखिए, क्वेश्चन अगर मन में रह जाए
तो फिर वो आगे के कॉन्सेप्ट्स में, हाँ, अनिंदिता इज आस्किंग समथिंग, व्हाई डू सम पार्ट of n plus region is overlapped by the gate metal? I didn't got your question. Hello, sir. Sir, in MOSFET structure, Hmm? some and there is n channel to n region n plus region there. एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ उसका. हाँ, ये Yes, sir. स्ट्रक्चर. Back. ये Yes, sir. Yes. So there is some part of gate metal is overlapped on n plus region. Some part. this Yes, sir. part you are talking about, this part. Yes, sir. Yes, Why sir. this is overlapping? Yes. This is because when we put silicon dioxide, हम क्या करते हैं जब हम इसको बना रहे होते हैं ना, तो इसको बनाने के टाइम जब हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें डालते हैं, तो Hmm. ये इस तरह से बनता है. ये यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर दूसरा बनेगा. एक मिनट, इसको दोबारा से बनाता हूँ. ये आपने इसको यहाँ पर बनाया, यहाँ पर ये इसका एक ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पर दूसरा ऐसे बनेगा. जब ये आप एचिंग करके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बनाते हो ना, तो Hmm. इट इज एक्चुअली द फैब्रिकेशन प्रोसेस जिसमें वो ओवरलैपिंग हो जाता है. आप इसको ना इतना क्लियर बना ही नहीं सकते कि वो बिल्कुल एज टू एज मैपिंग हो जाए. Okay. वो थोड़ा सा आगे रहता ही है. अगर आप उसको पूरा का पूरा एच करने की कोशिश करोगे, तो आपका गेट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और चैनल को फॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा. Okay. Yes. Okay, sir. I got it. तो Yes. ऐसे तो फिर कैपेसिटेंस भी आ जाएगी रोल में, गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन. प्लीज कम अगेन शिवांश. सर अगर थोड़ा सा पार्ट भी अगर रह रहा है तो फिर दो कैपेसिटेंस भी तो एक्स्ट्रा हो जाएंगी, गेट टू बिल्कुल, ड्रेन और हम गेट लोग टू हम लोग सोर्स. जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, हम लोग कैपेसिटेंस में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका कैपेसिटेंस अलग होता है, इतने पार्ट का कैपेसिटेंस हम अलग लेते हैं, और इस पार्ट का कैपेसिटेंस हम अलग लेते हैं. हम जो ये n प्लस के अंदर गेट के ऊपर SiO2 का पार्ट है, इसको कैपेसिटेंस में कंसीडर करते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपेसिटेंस. हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आई विल शो इट टू यू. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑक्साइड कैपेसिटेंस. ओके सर. Any other question? Anything? If you do not have to ask, if you do not anything to ask, so I will start with this lab part. और लैब के अंदर क्या करवाना है पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा. Should I start with what we studied on in lab yesterday? Or if you have anything to ask, please. Okay, so I start with the lab part. हम लोगों ने कल लैब में पढ़ा कि हमारे पास एक ना मॉसफेट का स्ट्रक्चर है. उस मॉसफेट को हमने इधर से कुछ वोल्टेज दिया, उसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसे ग्राउंड कर दिया, और यहां से कुछ वोल्टेज दिया और उसे ग्राउंड कर दिया. राइट. और यहां से इसको यहां से कनेक्ट किया. यहां से हमने आई डी लिया, और फिर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले. एक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का था, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का था. यही किया था कल हमने. एंड व्हाट वी डिड इन दैट, वी डिड एक्चुअली डीसी एनालिसिस. दो तरह का एनालिसिस हम लोग करेंगे इन आवर लेबोरेटरीज. वन इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस, वन इज कॉल्ड डीसी एनालिसिस. अगर हम किसी एनालिसिस के अंदर यहां पर इस जगह पर टाइम ले रहे हैं, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिएंट एनालिसिस. और अगर आप यहां पर कोई वोल्टेज ले रहे हैं, तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ डीसी एनालिसिस. राइट. हमने क्या कहा, हमने इस एक्सपेरिमेंट में कहा कि हमारे पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हैं. एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक हमारे पास है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास अगर VDS है और यहाँ पर ड्रेन करंट है, तो ये हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा. इसका मतलब क्या है, और हम इसको अचीव क्यों करना चाहते हैं, और इसमें से हम क्या निकालना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताएगा.
It is very important experiment. Let me say that is a voltage VD. This is called voltage VG. और यहाँ पर आपके पास जिसको आपने, ये आपका गेट है, ये आपका ड्रेन है. ड्रेन पर आपने वोल्टेज दी VD, गेट पर आपने वोल्टेज दी VG. ये आपका सोर्स है. अब सोर्स ग्राउंड है, सोर्स इज VS, इट इज ग्राउंडेड. हम दो तरह की वोल्टेजेस की बात करते हैं. वन इज VGS. VGS होता है VG माइनस VS. और दूसरी होती है VDS. इट इज VD माइनस VS. हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप गेट पे अगर वोल्टेज देते हैं तो करंट पास होता है. इसका मतलब आपका जो गेट है, वो गेट आपका ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है. अगर आपका गेट पर वोल्टेज नहीं होगी तो चैनल फॉर्म नहीं होगा, चैनल फॉर्म नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा. तो हम इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जब VGS होता है तो हमारे पास जो ड्रेन करंट है, जो करंट पास हो रहा है, वो इस तरह से पास होता है, ऐसे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं VGS का मतलब तो मेरा VG ही है. VGS इज VG माइनस VS. VS मेरा ग्राउंड है तो ये VG ही हो गया. तो अगर मैं यहां से VG वोल्टेज दे रहा हूं और जो ड्रेन करंट है अगर वो इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट है जहां के बाद मेरा करंट बहुत शार्पली इंक्रीज करता है. तो वो जो पॉइंट जहां से करंट शार्पली इंक्रीज करता है, उस पॉइंट पर जो नीचे वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उसके अंदर कहां देख सकते हैं. हमने कहा कि हमारे पास पहले एक्यूमुलेशन के बाद कुछ रीजन डिप्लीशन का आ जाता है. डिप्लीशन के बाद हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की लेयर फॉर्म हो जाती है. वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर ये लेयर फॉर्म हो जाए, मिनिमम वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अगर देखो आपके पास ये जो मॉसफेट का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको थोड़ा सा फिजिकली सोच के देखो. यहाँ पर एक SiO2 की लेयर है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने हैं पी टाइप में से. मुझे एक बात बताओ, मैं गेट पर वोल्टेज दे रहा हूं, अगर मेरी SiO2 की लेयर थिक होगी तो चैनल जल्दी फॉर्म होगा या थिन होने पे चैनल जल्दी फॉर्म होगा? गेस. If this layer is thick, then the channel will form early, or if the layer is thin, then the channel will form early. thin. अगर मेरे पास इसी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर ये मेरे पास लेयर थिन होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे, कम वोल्टेज पर आ जाएंगे, या ये थिक होगी तो कम वोल्टेज पर आ जाएंगे? यस, थिन होने पर ही आएगी, क्योंकि जितना इंसुलेटर थिन होगा उतनी जल्दी जो ऊपर से वोल्टेज है वो नीचे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. बिल्कुल सही गेस किया. इसका मतलब ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये आपका जो यहाँ पर ऑक्साइड की थिकनेस है इस पर डिपेंड करता है. इसी तरह से ऑक्साइड की थिकनेस के अलावा भी ये जो वोल्टेज है, किस वोल्टेज पर चैनल फॉर्म हो जाएगा, ये डिपेंड करती है 2-3-4 फैक्टर्स पे. ये मैं आपको कल बताऊंगा क्लास में. लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इसको हम उन पैरामीटर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. मतलब कि हम अपने ट्रांजिस्टर को लो थ्रेशोल्ड बना सकते हैं, हम अपने ट्रांजिस्टर को हाई थ्रेशोल्ड बना सकते हैं, हम अपने ट्रांजिस्टर को स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड पे ला सकते हैं. आज हम एक्सपेरिमेंट यही करेंगे, सिर्फ ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस पे कैसे रिएक्ट करता है. पॉइंट नंबर 1. दूसरा हम ये देखेंगे इसके अंदर कि अब जैसे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है. इस कैरेक्टरिस्टिक में मेरे पास यहां से लेके यहां तक तो लीनियर करंट है, उसके बाद सैचुरेशन हो जाती है. तो मैं देखूंगा कि मेरे पास अगर लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का है तो सैचुरेशन जल्दी आएगी, हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज में सैचुरेशन जल्दी आएगी, या फिर स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज में सैचुरेशन जल्दी आएगी. और क्योंकि एक बात याद रखिए, जब भी हम एनालॉग सर्किट्स की बात करते हैं तो उस केस में वी यूज टू यूज आवर ट्रांजिस्टर इन दिस लीनियर रीजन, क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर को रेजिस्टेंस की तरह चलाना है लीनियर रीजन में. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल डिवाइसेस, वी आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर इन दिस सैचुरेशन रीजन, जहां पर कांस्टेंट वोल्टेज आता है.
राइट। सो अब हम लेबोरेटरी की तरफ जाएंगे, तो लेबोरेटरी में ये देखेंगे कि विच ट्रांजिस्टर की हमारे पास इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक कैसे अचीव होगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम इसको लो हाई और स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज में क्या क्या डिफरेंस आता है उसको देखेंगे, राइट। सो अभी मैं इसको सेशन को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। 8:05 हुए हैं, ठीक 2-3 मिनट बाद 6-7-8 पर we'll start with the second session. Let me have a glass of water and you also take a break of 5 minutes. उसके बाद जो हमारा लैब वाला लिंक है हम सब उस पर ज्वाइन करेंगे, राइट। एंड आई विल स्टार्ट विद द लैब विद दीज डिफरेंट थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, मैं कोई और एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करवा रहा। मैं आपको इन्वर्टर भी आज करवा सकता हूँ, बट नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, राइट। आपको जब भी आप मॉसफेट के एक्सपेरिमेंट्स करें, सिमुलेशन केडेंस पे करें, कोई भी नया डिवाइस यूज करें, चाहे सीएनटी फिट यूज करें, फिनफिट यूज करें, 90 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर, कुछ भी यूज करें, जब तक आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम नहीं करेंगे आप सर्किट के बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार इन कैरेक्टरिस्टिक्स को करना जरूरी है। अब कल हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को 45 नैनोमीटर के साथ 90 नैनोमीटर पे भी करके देखेंगे, राइट। आज हम इसको 3 थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम सीधा प्रोजेक्ट्स पर आएंगे। चलिए अभी हम लेते हैं यहाँ से 5 मिनट का ब्रेक और फिर हम सब ज्वाइन करेंगे लैब वाले लिंक के ऊपर, राइट। थैंक यू सो मच।